myself Vishal. I am primary teacher of KVF India. सर एज ए टीचर आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है और इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होता है और टीचर्स को भी क्या बेनिफिट होता है? 26 November 1949, we adopted this constitution of which was drafted by Dr. Ambedkar committee. Actually, many of our citizens or many of our government employees and students also, they are not aware of much about this constitution of India. As per my knowledge, this is the longest written constitution of India in the world. It contains, I think, 444 articles with 22 parts, with 12 schedules. So it's not that much easy work to framework what kind of duties allotted to citizens of India, how the government have to work in a particular principle. This is actually fundamentals of a principle. So it suggests us, it guides us in a which way we have to rule in the country. So these are all the part of our duties. If we are not celebrating the Constitution of India, we are not much aware about the Indian policy and all. That's all. Thank you. थैंक यू सर। यूज़ करेंगे। My name is Siddharth Jain, working as TGT Science in Kendriya Vidyalaya in Air Force Station Nadia. And now what you want? सर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? Constitution of India. Whether you want this information in English or Hindi? Any language, sir. Any language. Well, Constitution of India came in existence on 26th of January 1950. It took at least 2 years, 9 months and 11 days time to constitute this constitution. Actually, when we get the freedom, our renowned leaders form a committee which is known as the Constitutional Committee, headed by Dr. Rajendra Prasad. And in the leadership of Dr. Rajendra Prasad, they formed the constitution. The drafting of this, the drafting was made by Dr. B.R. Ambedkar. Actually, he was the head of the drafting committee of that. All the committee members really have done a marvelous and laborious job. So, and the proof of this laboriousness is the timing, because as I told you earlier, that 2 years, 9 months and 11 days they have taken to constitute this constitution. It really shows that how much pain and how much labor they have done to constitute this. There are many provisions that have been done by our leaders for all the sections of the society. The socialism was induced in this constitution, and socialism was induced because at that time people of India was not having so much of money, because the Britishers looted India so brutally that Indians were really very much poor. So only the socialism was helping substance at that time. So the socialism was adopted by our leaders, and later on the backward section of all the society were also taken care of by, especially by Mr. Bhimrao Ambedkar. Though some of the people really criticize our constitution that many of its ingredients were imported from the various constitution of the world, but actually this was not so. All the good things that we are getting from someone, if we are inducing this in our life, it will be beneficial for us. Similarly, the Constitution of India also contains some of the good factors from all the constitution which are there, which are going on in the world. So it is actually a very good mixture of all the good things. गुड मॉर्निंग। तुम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि क्या कब लागू हुआ। तो ऐसे तुमसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी कि इसे क्या क्या हुआ था। तो मैं सबसे पहले पूछूंगी कि इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? विवेक। राजेंद्र प्रसाद। इंडिया का पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही बोला। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ये क्यों मनाया जाता है? Anyone? उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और ये लागू कब हुआ था? 1915। कोई बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहता है कि ये है हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए था? Anyone? कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जो बी आर अम्बेडकर थे वो दलित समाज से आए थे। इन्होंने जो लोअर कास्ट थे उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम को ज़्यादा बढ़ाया। इस हिसाब से जो ऊपर की कैटेगरीज वाले हैं उनके लिए
आज के एग्जाम्स में बहुत दिक्कत आ रही है। तो और 2-3 अमेंडमेंट से उनका रिजर्वेशन ये तो नहीं एकदम खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले उनका भी रिजर्वेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बेनिफिट मिले थे? स्कूल में इतने सारे फंक्शंस क्विज हो गए, तुम्हें से क्या बेनिफिट मिले? सबको नॉलेज मिलेगा। सब जो हम ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब बात करते रहते हैं, किसी को ऊपर से सब आता है, अंदर से कोई कुछ नहीं आता। तो क्विज के माध्यम से सबको वो अंदर की चीज़ें भी बाहर आती हैं। थैंक यू सो मच। आइए हम अब तक जानते हैं कि वो हमारे जो स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या जानते हैं। अनुश्री प्लीज बताओगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारी जो इंडिया है उसका एक सुप्रीम लॉ है जो हम सबको एक साथ बांधता है और हम सबको सर्कुलर करता है। और हम कह सकते हैं बंद करना। अच्छा, तुम हमें ये बताना चाहोगे कि जो हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं हमें? We are having a lot of benefits with the function being conducted in our school, as many parents will be coming to know of what is happening in the school. Many, as Gulia sir has announced in the assembly, some lectures will be given by special people. So parents will be coming to know what the constitution is helping students and benefiting us. अनुश्री, तुम पार्टिसिपेट कर रही हो? Yeah, I'm participating in the quiz which is being conducted in the open air theatre. The topic of that quiz is the Indian Constitution. Basically, the Indian Constitution is the supreme law which helps the government to govern our country. That's it. थैंक यू। रुक जा। गुड मॉर्निंग मैम, इंट्रोडक्शन प्लीज। My name is Sarita. यहाँ पे PGT SST। मैं संविधान के बारे में बताऊंगी। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी अध्यक्षता में भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कमेटी में हमारा ये संविधान बना, जिसमें 465 अनुसूचियाँ बनाई गई अनुच्छेद में, और जिसको 22 भागों में बांटा। 144 दिन इसको बनाने में लगे। ये हमारा संविधान, मतलब हमारा एक तरह से बोले तो हमारा बहुत बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आइए हम तो बच्चों जानते हैं कि वो जो हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है उससे उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? इनका एग्जाम हो रहा है, उसको बाद में करना। अरे हम लोगों को वैसे भी टाइम कम मिला है। हाँ, इनका टाइम। जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितना जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या आप बताओगे कि हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? Myself, Vidya Prajapati. I am teaching in private subject. सर प्लीज़ आप हमें ये बताएंगे कि हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं अभी इस टॉपिक पे, तो क्या बेनिफिट्स हो रही है स्कूल में बच्चों को? Obviously, it's a very beneficial for the children as well as the entire group of school, because such kind of activities are to be done in a day-to-day basis also, and it's very beneficial for the children also. थैंक यू सो मच सर। आइए हम सर से जानते हैं। सर पहले आप मेरा नाम ले। अच्छा, मैं बोलूँ? हाँ, मैं चंद्र प्रकाश राजावत, PGT हिंदी, केंद्रीय विद्यालय, वायुसेना स्थल नलिया। सर हमें आप प्लीज़ बताएंगे कि सद्भावना का मतलब क्या है? सद्भावना का मतलब इस समय जो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान है उसके द्वारा लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना उत्पन्न करने के लिए सभी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस सप्ताह के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत स्किट, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन इत्यादि का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के द्वारा राहत कोष में वृद्धि करने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। इस कोष के द्वारा जो पैसा एकत्रित किया जाता है, जो धनराशि एकत्रित की जाती है, उसका सदुपयोग सांप्रदायिक हिंसा इत्यादि में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी परवरिश हेतु उसका उपयोग किया जाता है। ये हम तो बच्चे जानते हैं कि वो कम्युनिटी फार्मिंग के बारे में क्या जानते हैं।
कम्युनल हार्मनी क्या है कि जैसे आजकल इंडिया के अंदर दंगे बहुत होते हैं। इंडिया के अंदर एटलीस्ट 3000 कास्ट हैं, 25,000 सब कास्ट हैं और अबाउट 20 रिलीजन्स एंड अबाउट 3000 वो लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ये फिर भी अब हमारे यहाँ पे सब दंगे होते हैं, फिर भी हम सब एक साथ जीते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्युनल हार्मनी। हम जैसे जो सांप्रदायिक सद्भावना पूरे राष्ट्र को जब एकजुट करते हैं, पूरे राष्ट्र को जब एकजुट करते हैं तो और जब हम सब एक साथ रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भावना। थैंक यू सो मच। जानते कि बच्चे जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके बारे में क्या सोचती है, तो आप बताओ कि आप जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं तो आंचल तुम बताओ कि ज़रूरी है हमारे लिए कि नहीं है? हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें बहुत नॉलेज मिलेगी। जैसे इसमें क्विज़ कंडक्ट हो रहा है तो उसके क्विज़ के ज़रिए हम बहुत सी नॉलेज अपने को गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अमन से ऐसे जो स्कूल में आज एक प्रोग्राम चल रहा है, आप इसके बारे में क्या जानते हो? दीदी थिएटर में इंग्लिश कॉम्पिटिशन नहीं, जो स्कूल में आज हमने प्रियंबल की प्लेजिंग कॉस्ट्यूम वाले का आप सब कुछ जानते हो? हेलो, व्हाट्स योर नेम? शक्ति। स्टैंडर्ड 10। ओके शक्ति, मैं तुमसे पूछती तो कम्युनल हार्मनी है, सांप्रदायिक सद्भावना, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? कम्युनल हार्मनी मतलब ये कि जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उन सबको ख़त्म करे और एकता लेके आए, हर रिलीजन में एकता लेके आए। इसको लाने के लिए, यूनिटी बढ़ाने के लिए NFCH करके एक फाउंडेशन है जो हर लोगों को, जो विक्टिम्स होते हैं इनके सब कम्युनल हार्मनी के, जितने भी वायलेंस होते हैं उन सब के जो विक्टिम्स होते हैं उन लोग को डोनेशन प्रोवाइड करता है। बस NFCH।